you so much, sir, for your lovely introduction. And first, I would like to say it is my honor to be here for such a prestigious panel, self-actualized global leaders. That this network of Youth Parivartan. This is such a, we can say, the beginning of an revolution. Because I always say that till the time we will not build a community of progressive mindset people, we cannot achieve SDGs. And even we cannot make our nation as a developed country. We will remain a developing country till next 30, 40 or 100 years, till the time we will not change the mindset of the society. So this is, I really would like to congratulate you first for this wonderful initiative where you are creating a society of progressive mindset people. एंड मैं आज तो नहीं कहता कि बट आज इसका क्या है, बट ये जो आज शुरुआत हो रही है, जो ये पौधारोपण जो हो रहा है, ये बरगद बनेगा और ये ऐसा बरगद बनेगा जो इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर छांव देगा। और छांव वो किस चीज़ की होगी? वो एक सस्टेनेबल छांव होगी जहाँ पर जिसमें कि सारे के सारे जो ग्लोबल गोल्स हैं, 17 ग्लोबल गोल्स हैं वो, और प्लस जो आपने शुरुआत की है 0 गोल 18th गोल की, वो इसको शील्ड करेगा। ऑल्दो 17th जो गोल है वो इसी बात को लेकर है कि बाकी 16 गोल को कैटर किया जाए, बट जो 0 गोल 0 का ये जो प्लान आपने किया है, this is something extraordinary effort, and this effort gonna change the pattern of UN working. This can create what I can say, an alignment among the developed nations and developing nations. You know, we always say, even in my last conversation with the UN Secretary General in the month of June only, I got opportunity to interact with him in CSW 65, Commission for Status of Women. So we were around 8 people selected from across the globe to interact with him. I raised this point that everybody is working, to achieve SDGs. Yes, it is true that we need to work on that, but we need to categorize also, because for achieving SDGs in developed country, it is completely different. For achieving SDGs in developing country is completely different. So I raise this point that till the time, because I really work on women's issues. I worked on malnutrition. I work on anemia. I closely monitored what is the health condition of women in marginalized section of the society. I clearly saw that how they are struggling, how they are surviving. In COVID, we saw that there are number of organizations are distributing food and everything to the laborers and everyone, but there were mothers who were not able to feed their newborns. They don't get milk because they are anemic, they are malnutritious, so they are not able to feed even their children. So I raise this point that till the time you will not prioritize the agenda of health in developing countries, women's health, you cannot achieve gender equality in developing nations. Because whenever we say about that in developed countries, you don't need to think about a woman's education, you don't need to think about her health. If a girl is born in US, so there is even a legal procedure that you can do the sonography. You can understand that it is boy or girl. But in India, we see that a struggle of a woman starts before her birth. Once we get to know that she's a girl, so that is her struggle start from that day. When she come in this world, then she struggle for food, she struggle for equal food among the, even in the same family. Then she struggle for health issues, she struggle for education, she struggle for rights and everything. So this is the perspective that I raised there. So now I come to the point that is the today's my topic, which is SDG 1, the goal 1. So in terms of goal 1, I personally, as Mr. Amit Saab has given my intro, that how I elevated from slums, how I lived in slum. I born
in the very crime prone slum of Delhi, and at the age of 2, my parents left me. Uh, it was huge, struggle. I don't want to say struggle. It was given fact that the nature has selected me for something, so that nature has made me realize a practical experience that what is the poverty. तो उस ईश्वर ने मुझे चुना था, शायद इसलिए उसने मुझे स्लम में पैदा किया। स्लम में इसलिए नहीं पैदा किया कि मुझे कष्ट देने थे, स्लम में मुझे उन सारे एक्सपीरियंस से अभिभूत इसलिए कराया कि उन चीज़ों को मैं पर्सनली देख लूँ, पर्सनली जी लूँ, पर्सनली जान लूँ कि गरीबी क्या होती है, मार पिटाई क्या होती है, क्राइम क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है। एक मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जब एक लड़का, एक लड़की, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, या कोई उसके बड़े होने तक का जीवन, उसका संघर्ष क्या होता है, वो मैं ठीक से जान लूँ। शायद मैं उस पर आगे चल करके काम कर पाऊँ, इसलिए उस नेचर ने मुझे वो एनर्जी दी। उस भुखमरी को मैंने बहुत क्लोजली अपने जीवन में फेस किया है कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी बुआ के सहारे छोड़ गए थे, तो वो सिलाई किया करती थी और दिन के 18 से 20 रुपया आया करता था। तो जिस दिन वो 20 रुपया 25 रुपये में कन्वर्ट होता था या इनकम ज़्यादा हो जाती थी सिलाई से, तो उस दिन सब्जी के साथ रोटी मिलती थी, अदरवाइज चटनी के साथ रोटी मिलती थी। तो घी क्या होता था रोटी पर, ये तो उस दौर में नहीं जाना, बट हाँ, ईश्वर ने कुछ इस तरीके के काम कराए कि जो पड़ोसियों का प्यार इतना मिलता था कि वो पड़ोसियों के घर से मेरे लिए खाना आता था, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी में एक अकेला छोटा बच्चा था। तो 12-15 फैमिली में एक ही बच्चा था, तो नेचर ने वो भी इंतजाम किया हुआ था कि इसको अपने घर पे खाना नहीं मिलेगा तो दूसरे घर पे मिल जाएगा। तो सब लोग बहुत प्यार किया करते थे। और किस तरीके से सोसाइटी ने गोद में लेकर के नर्चर किया, नेचर ने नर्चर किया, ये उनकी महानता थी। ये उन लोगों का वो था कि उससे उसको एक्सपीरियंस करते हुए उससे ओवरकम कर पाया। और ओवरकम करते करते जब सोसाइटी ने ही मुझे गोद ले लिया और सोसाइटी के लिए जब मैंने अपने आप को डिवोट कर दिया, तो उसी सोसाइटी ने मुझे उस स्लम से निकाल करके एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन तक भी पहुंचाया। तो शायद जब 10वीं क्लास मेरी लास्ट क्लास थी, 10th वाज माय लास्ट क्लास, उसके बाद से आज तक स्कूल नहीं गया। बट आई एम डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट मुझे मिल चुकी है। आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए आल्सो, आई हैव डन बैचलर इन सोशल वर्क आल्सो। तो वो सब चीज़ें करने का भी मौका मिला। हालांकि स्कूल का 10th क्लास ही लास्ट था, लेकिन ऊपर से अपना कंटिन्यू कर पाया। तो SDG 1 पर मैं जब मुझे बोलना था तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे और उस बात पर मैं आते हुए फिर अपनी बात को उस वे में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मैं विद इन टाइमली मैनर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। That along with being one of the fastest developing economic in the world, India has played a tremendous role in the formulation of UN SDGs and basically agenda of 2030. We all know that SDG consists of 17 goals, 169 targets, and 306 national indicators. Although the SDG is an, it is a list, or we can say it has not stopped in India for making substantive progress towards achieving most of these goals. Goal 1, especially for which we are talking on the SDGs on is the complete elimination of poverty in every form by 2030. And when we see from 2008 to 2018, I don't want to cover this 2019 and 2020 wala period of COVID wala. It was completely different period because it has raised multiple new dimensions. The poverty rate in India had as the percent of Indians living in the poverty dropped from 55 to 28%. The good news is that India is on the track to eliminate extreme poverty by 2030. However, it is important to recognize recent trend to gain a better perspective on where India stands in the race of achieve SDG goal 1. As of 2018, the 44 people in India came out of extreme poverty in every minute. It is a data. This is the fastest rate of the poverty reduction in the world. Besides rapid economic development, this reduction in poverty can be attributed to an anti-poverty government agenda.
In the same year, India fell one spot from being the home to the largest number of poor people in the world. Despite being the fastest growing population in the world, India's rate of absolute poverty continues to decline. In just one decade, India lifted 271 million people out of multidimensional poverty. This is the nearly half the total population of Indians living in poverty. Multidimensional poverty refers to poverty across an array of factors such as lack of education, health care, and insufficient standard of living. When we say about the habitat and all, economic development is concentrated within the urban region of India at the same time. An investment in the most vulnerable community allowed millions to rise from poverty. In addition, the investment provides millions of the population with sufficient means to live sustainability. This includes access to sanitation, cooking gas, electricity, and education in food growing techniques, etc. Now, here what economist says that India's economy must grow at 7 to 8% annually in order to achieve SDG Goal 1 in India by 2030. And the last 15 years, we have maintained an average growth rate of 7.4%. Much of this growth is the result of the government program that invested directly in the lives of their citizens. By providing basic necessities to poor populations, India is able to bring people out of poverty and make them more productive and self-sustainable. As we aim to achieve its goal on time, at a glance, a recent trend give an optimistic view of the future of India. The evidences suggest that government can effectively tackle poverty when they have the mean to do so. The past decade in India is a prime example. However, India is only halfway through in achieving SDG Goal 1, and even in order to continue its progress, it is imperative to recognize the benefit of coordinated government initiatives that are supported by our own. For the country's thriving economy and progress toward SDGs Goal 1 in India can only sustain. It's through the support of the economic government, or we can say the governance. So here is what a golden age and Yug Parivartan is doing. It is a collective effort. They are making a team of global leaders where everyone will be having the same mindset, especially when a Yug Parivartan Golden Age says that spirituality. While listening this word spirituality, it has different meanings. Some people connect this with religious things, some connect with this in a faltu ka funda and all. But what is the importance? For that, we need to understand the importance of traditional practices for achieving UN SDGs India. We had multiple initiatives in past where we tried to showcase the scientific significance of Indian traditions for achieving UN SDGs. And I proudly can say that we have those kind of sustainable traditional practices. अगर हम उनका पालन करना शुरू कर दें, अगर वो जिस तरीके से हैं, अगर उनका हम सही तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दें, तो हम यूएन एसडीजीज जितने भी हैं ना, ये सारे 2030 से पहले इंडिया में अचीव कर सकते हैं. लोग इसको नहीं मानेंगे क्योंकि मैंने वही कहा ना कि एसडीजीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है. जब हम एसडीजीज को डेवलप्ड नेशन में बात करते हैं तो वहां पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन जब हम एसडीजीज को डेवलपिंग नेशंस में अचीव करने की बात करते हैं, खासकर जब इंडिया में बात करने की करते हैं, तो मैंने ग्लोबली इतना ज्यादा मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने जाना है, हम लोगों की कुछ ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जिनका दुनिया में डंका बजता है. मैं 2-3 चीजों का जरूर मैं अपने सेशन में जिक्र करूंगा, अच्छे से करूंगा. जब हम हंगर पॉवर्टी पर आते हैं, अब देखिए पूरे साल भर में डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स हैं, एंड एवरी फेस्टिवल हैज फास्ट, जिसे हम व्रत कहते हैं. तो सबसे बड़ी चीज क्या है? रिसोर्सेस. कि इंडिया का हमारा जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो कल्चर है, वो रिसोर्सेस को वेस्ट होने से बचाता है. आप सोमवार आप वीकली फास्ट रखिए, तो जब एक व्यक्ति खाना कम खाता है तो वो रिसोर्सेस किसी के लिए तो जनरेट होते हैं. आप 9 दिन फास्ट रखिए नवरात्रे का,
तो जब पूरा का पूरा कम्युनिटी फास्ट रखता है तो वो रिसोर्सेज किसी के लिए बचते हैं। हाँ, हम जब जाते हैं, आप देखिए कि गुरुद्वारा हुआ, मंदिर हुआ, लंगर हुआ, यहाँ पर वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई, जहां पर इनकलकेट किया गया आदमी के अंदर कि भैया आपको अपने से ऐसे जो लोग जिनके पास खाना नहीं है, जो पॉवर्टी का शिकार हैं, जो गरीब लोग हैं, और गरीब जरूरी नहीं है कि पैसे से गरीब है, कई लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो बहुत सारी एट्रोसिटीज से विक्टिमाइज्ड हैं, उस वजह से उनको गरीबी का रास्ता देखना पड़ा। बहुत से लोग डिफरेंट ऐसे रीजन से आते हैं जहां पर खाना पैदा ही नहीं होता, पानी नहीं होता, वो इसलिए गरीब है। लेकिन एसडीजीज तो अब आए हैं, यूनाइटेड नेशन तो अब बना है, हम लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं वो तो हजारों सैकड़ों साल पुरानी है। गुरु नानक के टाइम पर चीज थी कि उनको जो पैसे मिला करते थे वो पैसे ले जा करके जो वो गरीबों को खिला दिया करते थे, और घर पर जाते थे कि मेरे पास कुछ नहीं, तो पूछा जाता था कि कहाँ गए वो पैसे, तो बताते कि मैं तो खाना खिला करके आ गया उन लोगों को। तो एसडीजी 1 इंडिया में आज से नहीं है, एसडीजी 1 की जो प्रैक्टिस है वो इंडिया में बहुत पुरानी है। आज जो हम लोगों के मंदिर हैं, जो हमारे लंगर हैं, वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति को मरने से बचाते हैं। जब हम कहते हैं कि हंगर से व्यक्ति मरता है, जब हम कहते हैं कि पॉवर्टी से व्यक्ति मरता है, तो ये गुरुद्वारे और मंदिर ही तो हैं। आप हिंदुस्तान के किसी स्टेट में चले जाइए, आपको कहीं रहने को नहीं मिलेगा तो गुरुद्वारा आपके पास है, मंदिर आपके पास है, वहां लंगर आपको चलता मिलता है, और श्रद्धा भाव से मिलता है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी मैंडेट में नहीं आते ये। गुरुद्वारे के लिए कोई मैंडेट नहीं है कि उनको करना ही करना है, कोई सीएसआर कंप्लायंस नहीं है उनका। दे आर नॉट फंडेड विद द एनी इंटरनेशनल ग्रांट और द गवर्नमेंट ग्रांट। दैट इज द कल्चर, दैट इज a traditional practice. So see how this traditional practice is powerful. मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट मत प्रैक्टिस कहता हूं कि जो एक ट्रेडिशनली डेवलप की गई। ऑल्दो ये भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नेचुरल प्रैक्टिस है, it has also been made by human, but for what? To save the humanity, to experience the humanity. हम जब इस पे बात करते हैं तो मैं एक बात को बहुत ज्यादा रखता हूँ। अभी हम सब लोगों ने देखा कोविड में क्या हुआ, लोग निकल करके आए, कोई ऑक्सीजन का लंगर चला रहा है, कोई फूड का लंगर चला रहा है, हर घर से खाना बन करके लेबरर्स के लिए जा रहा था। हम लोगों ने भी किया, हम लोगों ने एक इशू आइडेंटिफाई किया, जो मैंने अभी बताया आपको कि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था। हमने 6000 बच्चों को एडॉप्ट किया और उन बच्चों तक मिल्क सप्लाई पहुंचाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के साथ हाथ थामा हमने, तो हमने आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई कौन से राइट बेनिफिशियरीज हैं जिनको जरूरत है। हियर व्हाट आई से, द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल लिविंग इन अचीविंग एसडीजीज। क्योंकि विदाउट अचीविंग, विदाउट अडॉप्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, हम लोग गोल 1 से लेकर गोल 17 तक कोई भी अचीव नहीं कर सकते। और सस्टेनेबल लिविंग का जो गोल जो क्रिएट किया जा रहा है ना, वो आई थिंक दैट शुड बी अ गोल 0। आज हम अगर इस पर बात करें कि पॉवर्टी और हंगर और ये सारी चीजें, जितने भी इश्यूज मैंने बात किए, सो इसमें एक कंसर्न आता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ सस्टेनेबल लिविंग इज इंपॉर्टेंट देयर। जब हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें शादी का खाना हुआ, रेस्टोरेंट का खाना हुआ, टन्स के हिसाब से खाना सड़ता है, खराब होता है और नालियों में बहा दिया जाता है। वी ऑल नो, ठीक है, पैसा हमारा है, हमने अपने पैसे से खरीदा, ठीक है, बट रिसोर्सेज आर नॉट आर ओन्ड। रिसोर्सेज पर मेरा अकेले का अधिकार नहीं है, रिसोर्सेज पर इस पृथ्वी पर रह रहे हर इंसान का बराबर अधिकार है, इस देश के हर नागरिक का बराबर अधिकार है। ठीक है, कोई अफोर्ड कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। अगर आज मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को उसे वेस्ट करना चाहिए। सो हियर इज व्हाट सस्टेनेबल लिविंग इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल लिविंग? व्यक्ति को सात्विक बनाना इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अभी मैंने एक कोविड रेजिलियंस पर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड दैट हैज बीन सिलेक्टेड टू बी पब्लिश्ड इन जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन इन हाई लेवल पॉलिटिकल सेगमेंट। वो पब्लिश हुआ है, वो नेट पर अवेलेबल है, लाडली फाउंडेशन का कोविड रेजिलियंस पर। उसमें मैंने सस्टेनेबल लिविंग की ही बात की है कि इस देश की 700 करोड़, इस दुनिया की 700 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसके लिए आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते कि आप 700 के 700 करोड़ को कैटर कर लेंगे। हमने देखा हिंदुस्तान में किस तरीके से सिस्टम कोलैप्स हुआ, हम सब जानते हैं, हमने अपनों को खोया है, बट लोग निकल करके आए।
अब जब बात आती है कोविड रेजिलेंस पर भी, और इस बात पर कि हम अगर पॉवर्टी एलिवेशन की अगर बात करते हैं, तो अगर एक एक व्यक्ति सात्विक होता चला जाएगा, स्पिरिचुअल होता चला जाएगा, जो एजेंडा गोल्डन एज एंड युग परिवर्तन ने लिया है, इन एजेंडास को अगर फॉलो करता चला जाएगा, तो उसके कितने बेटर परिणाम आने हैं। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। खाने का वेस्टेज कम होगा, हम लोग सात्विक खाना खाएंगे। आज हम थाली में हमें चाहिए 2 रोटी होती हैं, हम 50 चीजें लेते हैं। चलो ठीक है, जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है वो करता है, बट इट इज नॉट ओनली दैट यू आर वेस्टिंग दी रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो दैट यू आर हार्मिंग योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को खाना तो लिमिटेड चाहिए ना। फिर क्या होता है, ओबेसिटी का शिकार बनता है व्यक्ति, ओबेसिटी से हाइपरटेंशन का, डायबिटीज का शिकार बनता है, हार्ट फेलियर्स होते हैं, मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं। तो यहां पर काम आता है सस्टेनेबल लिविंग का फॉर्मूला नंबर 1, योगा एंड मेडिटेशन, एंड दीज आर द साइंटिफिक प्रूवन प्रैक्टिसेस। सो योगा इज नॉट ओनली अबाउट कि आप टांग उठा करके एक टांग पे खड़े हो गए तो वो योगा है, नो। योगा इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। योगा में पूरा आपका दिनचर्या से लेकर आपका रहना, खाना, पीना, सोना, बात करना, आपकी हर चीज कवर होती है। सो वंस यू फॉलो योगा, यू आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। तो उसमें आप देखिए, आप रेगुलर जब इसको फॉलो करते हैं तो आपके ब्रेन में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एंड्रोफिन रिलीज होता है। व्हाट दीज गुड हार्मोन्स डू, ये तो मैं नहीं कह रहा ना कि मैं गीता से पढ़ करके बोल रहा हूँ, ये तो जो साइंस कहती है मैं वो बात कर रहा हूँ, जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जो आपकी आज की जो मेडिकल साइंस है जिसको हम लेकर के चलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं ये हार्मोन्स बॉडी में, ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, ये आपको खुश रखते हैं। तो जब व्यक्ति खुश रहेगा तो क्राइम भी नहीं करेगा, खुश रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन में न रह करके किसी के साथ चीटिंग नहीं करेगा, खुश रहेगा तो घर परिवार को भी सुखी रखेगा, खुश रहेगा तो एंजाइटी का शिकार नहीं होगा, हाइपरटेंशन का शिकार नहीं होगा, बीमारियों से बचेगा। सो सस्टेनेबल लिविंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गिव सस्टेनेबल सॉल्यूशन एंड स्पेशली टू हेल्प सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो एक प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को अभी तक उस लेवल पर प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, कई आश्रम्स हैं, कई यूनिट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। देयर आर नंबर ऑफ फाउंडेशंस जो कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो चला रहे हैं इसको, बट व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग, दैट इज द परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, उस एज में कोई अपने आप को ब्रांड बना रहा है, मैं नहीं मानता कि वो भी गलत है, कोई अपने आप को ब्रांड बना रहा है तो ठीक है, क्योंकि जब ब्रांड बनेगा तभी लोग मानेंगे। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करने की सिचुएशन में होते हैं तो आप इन्फ्लुएंस करते हैं। आज देयर आर नंबर ऑफ ब्यास इन इंडिया, जो सत्संग ब्यास हैं बहुत सारे, जो डेराज हैं, वो कितने लोगों को कंट्रोल करके रखते हैं, उनके सात्विक रहने पर कंट्रोल करते हैं, उनको क्राइम में पार्टिसिपेट ना करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको जो हम कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, एल्कोहल नहीं कंज्यूम करना। तो ये जो एल्कोहल्स वगैरह का कंजम्पशन है, सबका अपना अपना रूटीन है, वो सही है या गलत है वो एक डिफरेंट इशू है, बट एक्सेसिव किसी भी चीज का होना तो गलत है ना। वो जो एक्सेसिव जो नेचर होता है वो तो बर्बाद करता है ना सोसाइटी को, नॉट ओनली फैमिली को, ओवरऑल सोसाइटी को बर्बाद करता है। तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर के जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं और जो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल किए हुए हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल किए हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। सर जब ये लोग जाते हैं ना, एक व्यक्ति जो किसी उस पर्टिकुलर डेरा को, ब्यास को, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है, उसकी वैल्यूज को फॉलो करता है, तो वो उसको स्प्रेड करता है अमंग दी कम्युनिटीज। लोगों को खाना खिलाना, कोई गरीब व्यक्ति आ जाए तो उसका ख्याल रखना, हाँ, बड़ों से ढंग से बात करना, बदतमीजी नहीं करना। तो ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। मैं वापस से गोल 1 पे आता हूँ, उधर को हमें एग्जांपल्स देखने चाहिए। वी नीड टू थिंक अबाउट बुंदेलखंड, द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज, फॉर व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड वाटर। वहां पानी नहीं है, खाना नहीं है, माँ को लगता है कि ये लड़की तो निकले कम से कम यहाँ से, 14 साल की उम्र में उसकी शादी कर देनी है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का खाना बचेगा, एक व्यक्ति का पानी बचेगा।
So poverty is not only related to poverty. Poverty is creating a issue that is child marriage. It is a big cause जिसको कि एलिमिनेट करने की जरूरत है. इधर हम पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, हमें चाइल्ड मैरिज की एलिमिनेशन पे भी बात करनी है, क्योंकि दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू डिस्ट्रॉय वुमेनहुड. तो खाना ना होने की वजह से चाइल्ड मैरिज हो रही है, इसको कनेक्ट करने की जरूरत है. अगर एक परिवार संपन्न होगा, उसको खाना पानी मिलेगा, तो वहां पर बुंदेलखंड जैसी जगहों पर ये इशू भी, मैं ये नहीं कहता कि 100% एलिमिनेट हो जाएंगे, बट इट इज अ कॉज. ये एक रीजन है, वहां पर ये कारण है, इसको हमें सोचना पड़ेगा. जब हम बात करते हैं रिमोट विलेजेस की, बंगाल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट उड़ीसा, इफ वी टॉक अबाउट झारखंड, पोवर्टी और हंगर की वजह से दे आर द बिग रीजन ऑफ ट्रैफिकिंग. देयर आर ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग ग्रुप, वो वहां से लड़कियों को लेते हैं और उनको फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में लेकर के जाते हैं. Poverty and hunger, goal 1 is not only a reason that कि सिर्फ भूखा है बंदा, वो क्राइम की तरफ लीड करता है. वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिला, वो सिर्फ खाना है, उस हंगर के चक्कर में ही तो क्राइम करते हैं. तो जो ऑर्गेनाइज्ड जो ये क्रिमिनल रैकेट्स होते हैं, वो उनकी भूख को शांत करने के लिए उनको नशा कराते हैं. जितनी देर ये नशा करेगा तो वो नशे के नशे में रहता है, सब्सटेंस अब्यूज करता है, उतनी देर खाना नहीं खाता, लेकिन उस नशे में वो क्या क्या करवाते हैं उससे, स्नैचिंग करवाते हैं उससे. क्योंकि उनको पता है कि छोटा बच्चा अगर सजा किसी को मार के आ जाएगा, ब्लेड मार के आ जाएगा, तो बड़ी सजा नहीं है. वो उनको ट्रेन करते हैं. सिर्फ और सिर्फ ये पेट है ना साहब. मैंने एक कोट है मेरा यहाँ पर कि भूख और रसूख व्यक्ति से कुछ भी करा सकते हैं. सो वेयर वी आर लीडिंग एंड व्हाट वी हैव लेफ्ट, ये दो जो छोर हैं, इनके बीच में एक गैप है. उसको, उस गैप को ब्रिज करना है. जो हम छोड़ चुके हैं उसमें इतनी सारी अच्छी चीजें हैं जो शायद से अगर हम अडॉप्ट कर लें, शायद से अगर उन प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइज कर लें, तो हम एक ना बहुत बड़ा एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. और उसको लेकर के जो गोल 0 कि आप लोगों की जो शुरुआत है, मैं इसे वाकई में जो आपने नाम दिया युग परिवर्तन, ये परफेक्ट सूट करता है. इस पर ये परफेक्टली सूट करता है. हो सकता है युग परिवर्तन को बनाने वाले आप जो लोग हैं, हम अपने जीवन काल में इस परिवर्तन को ना देख पाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुरुआत भी नहीं करेंगे. और ये जो शुरुआत हुई है, ये आज से होकर के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, कितने भी साल में जब ये कल्चर स्टेब्लिश होगा ना साहब, मैं भाई आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चर, जब ये चीजें कल्चर में इन्वॉल्व होती चली जाएंगी ना, तो वाकई में जो हितेश जी की जो कल्पना है ना युग परिवर्तन की, ये सार्थक होती हुई नजर आएगी. और ये कोई छोटी कल्पना नहीं है, इसके लिए आपको ईश्वरीय कृपा चाहिए. ये विजन आने के लिए ईश्वरीय कृपा चाहिए साहब. आपको भेजा जाता है, आपको चुना जाता है. आई प्राउडली से कि हितेश जी को इस काम के लिए चुना गया है. ही हैज नॉट डिसाइडेड कि मुझे फोरम करनी है, मुझे इन सब चीजों पर लोगों से ज्ञान लेना है और ज्ञान बांटना है. नो, दीज आर द स्मॉल थिंग्स. व्हाट इज द बिगर विजन? सो एवरी बिगर रीजन हैज अ बिगर रीजन. So till the time you do not have reason, you can't create vision, and that is what happened here. ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत लीड करेगी पहले तो हिंदुस्तान की जो हम लोगों की साइंटिफिकली प्रूवन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम इनको साइंटिफिक वे में ही, क्योंकि देखिए दुनिया नहीं समझेगी, जो खासकर किताब पढ़ने वाले लोग हैं वो दूर रहते हैं इन चीजों से. क्या क्या ज्ञान की बातें हमारे सामने कर रहे हो. नो, बट व्हाट आई बिलीव कि समाज में कोई परिवर्तन आता है तो वो ऊपर से आता है बदलाव, और प्रॉब्लम नीचे से आती है.
मैं इसके मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ऊपर से नहीं आती, ऊपर से प्रॉब्लम भी आती हैं, पर जब हम बदलाव की बात करते हैं, जब हम बदलाव की बात करते हैं, तो आज हिंदुस्तान में जो कल्चर डेवलप हो रहा है, अमेरिका से, फ्रांस से फैशन चल के आता है मुंबई, मुंबई से फैशन चल के जाता है दिल्ली और अदर सिटीज में, और वहां से डाइवर्ट होता है गांव में। उसी तरीके से कोई भी बदलाव भी, ये जो कम्युनिटी आप डेवलप कर रहे हैं, यहीं से शुरू होगा। हम जब पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, और हम जब अगर पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम रिसोर्सेज को सेव करने में कामयाब हुए, अगर हम रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम करने में कामयाब हुए, तो ये बड़ा रेवोल्यूशन होगा। इसमें आप ले सकते हैं इस बात को, बहुत से लोगों ने किया। मेरे कई जानकार हैं जो ऐसी शादियों में नहीं जाते जहां पर लेविश खाना होता है, उन्होंने बिल्कुल इस बात का वो किया हुआ है कि भाई आप सात्विक रखेंगे तो हम आएंगे। तो जरूरी कोई है कि 300 फूड स्टॉल आप लगाएंगे तो ही आपके बेटे की शादी हो रही है। अल्टीमेटली उन 300 में से खाया कितना जा रहा है। अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, करेज चाहिए। एक मूवमेंट आया था जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजी वस्त्रों का त्याग किया था, खादी पहनना शुरू किया था। एक व्यक्ति की शुरुआत थी ना, क्योंकि जो काफी अकेला होता है वो अकेला काफी होता है। तो कभी ये नहीं सोचना कि 50 लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मैं तो ही मेरा कोई रेवोल्यूशन चलेगा। हितेश जी अकेले काफी हैं, उनको नहीं है मेरी जरूरत। मैं यहाँ आकर के बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी उनका काम चलेगा, क्योंकि इट इज हिज पैशन, ही इज वर्किंग फॉर पैशन। एंड पैसे से ज्यादा जब व्यक्ति पैशन के लिए काम करता है ना, तो उसको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पैशन आप नहीं क्रिएट करते हैं, पैशन नेचर आपको देता है। वो जो गुड सिनर्जीज होती हैं, वो गुड सिनर्जीज आपके अंदर इनकलकेट करती हैं पैशन को। एंड यू कांट बी पैशनेट, यू कांट बी इमोशनल। अपने आप से आप इमोशनल नहीं हो सकते कि जब मैं चाहूं तो मैं इमोशनल हो जाऊं। सर कभी आजमा करके देखिएगा, आप चाह करके इमोशनल नहीं हो सकते, आपकी मर्जी से आप इमोशनल नहीं हो सकते। इमोशनल होने के लिए कुछ अलग चीज होती है, वो अलग ही केमिकल होता है, वो ब्रेन में कहां से आता है वी डोंट नो, वो नेचुरल है। वो होता है जब आप अपनी एंगर को होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जब अपने आप को नियंत्रित करते हैं, और जब आपका कनेक्शन उन गुड एनर्जीज के साथ स्टेब्लिश होता है, उस नेचर के साथ स्टेब्लिश होता है, तब आप इमोशनल बनते हैं। तब आप अपने साथ साथ दुनिया के बारे में सोचना शुरू करते हैं। दैट इज द मोमेंट। और वो मोमेंट जब क्रिएट होगी तो बस दुनिया की जरूरत नहीं है। इस शर्ट को सिलने के लिए धागा इतना सारा चाहिए, बट सुई एक ही चाहिए साहब। तो वो सुई जो है वो, दिस प्लेटफॉर्म कैन बी, आई कैन से अ गुड वर्ड, कि आप वो सुई हैं साहब, आप सिलते चलिए, धागा अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और ये जो मूवमेंट आप लेकर के चल रहे हैं, इस मूवमेंट को मैं अपने शब्दों में तो नहीं बयान कर सकता कि ये कितना बड़ा चेंज है। दिस चेंज that gonna transform the society, this step gonna transform the mentality, this change gonna build a peaceful, what do you know, the peaceful world. And this step, this initiative can make this world a place for living, not surviving. 99% of people on this earth are surviving. Only 1% of people are living. So first we need to think about, when we talk about sustainable living, then we have to be warrior, not survivor. We all have thought that we are survivor. ठीक है, काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, नहीं आएगा तो क्या होगा, इतनी बड़ी सबमिट कर रहे हैं, कहाँ से फंड आएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसको और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे लेके जाना है, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, बहुत सारे सवाल आते हैं। बट ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। एंड हितेश जी, आई तो पर्सनली सल्यूट यू कि आपको, एंड वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपको इस चीज के लिए चुना गया। एंड मुझे साहब 16 साल की उम्र में पता चल गया था कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मैंने 10 साल अपना बिजनेस रन किया और बहुत अच्छे से रन किया,
और इतना कमा लिया कि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपना दायरा बना लिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतनी इनकम चाहिए मेरी सस्टेनेबिलिटी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे रहने खाने के लिए। वो करने के बाद मैंने टोटली एक ट्रैक पर आ गया। नाउ आई एम 24 आवर अवेलेबल फॉर माय पैशन, फॉर व्हाट आई एम डूइंग। मैं चाहूं तो मैं इनकम के लिए उधर कंटिन्यू कर सकता था, बहुत अच्छा इनकम था, बट व्हाट्स लिमिट, क्या लिमिट है उस बात की? मैं कितना कमा लूंगा? 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। क्योंकि जिस दिन 100 करोड़ अचीव करूंगा उस दिन 200 करोड़ की इच्छा मन में पैदा हो जाएगी, जिस दिन 200 करोड़ करूंगा उस दिन 500 करोड़ की इच्छा पैदा हो जाएगी। तो इच्छा का तो दमन नहीं हो सकता ना। सो अपने आप को सेटिस्फाई आप तभी कर सकते हैं जब आप ये जान लें कि आप इस दुनिया में आए किस लिए। दैट इज गोल जीरो। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तभी आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हितेश जी, आपको ये पता चला, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड यू हैव बीन चूजन फॉर दिस। और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है, इतना तो मुझे अश्योरिटी है ही है। खासकर आप वो गलती मत करिएगा जो यूनाइटेड नेशन ने की हुई है। मैं बड़ा ब्लंटली इस बात को बोलता हूं, क्योंकि मैं यूएन के साथ काम कर रहा हूं, तो हालांकि हाई रिस्क जोन में हूं कि मैं ऐसी स्टेटमेंट दे रहा हूं, बट इट इज ट्रू कि आप वो गलती मत करिएगा कि एक ही हंटर से आप सबको हाँक दें। वी हैव टू सेग्रीगेट। अगर हम पंजाब में जाकर के काम करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला एक हो सकता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हम हरियाणा में काम करना चाहते हैं तो हमारे को वहां के कल्चरल वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। और आप देखिएगा, जब जब आप जिस रीजन में, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है, पूरा वर्ल्ड, डाइवर्सिटी तो पूरे वर्ल्ड में है। आप जहां भी जाते हैं ऐसा कोई कि खाली इंडिया में डाइवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है। बट अगर मैं ये कहूं कि मैं हिंदुस्तान की प्रैक्टिसेस को यूएस में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दूंगा, तो मैं तब तक नहीं कर सकता कि जब तक मैं वहां पे उन लोगों को कन्विंस नहीं कर लूंगा। बट एटलीस्ट जो लोग ऑलरेडी कन्विंस हैं उनको तो मैं दूर ना करूं ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूनिसेफ के फंक्शन में मैं था, तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी चाइल्ड मैरिजेस को लेकर के, कि हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, ये चलाया, वो चलाया, हमारे पास 10 लाख लोगों के सिग्नेचर हैं। तो मैंने एक छोटी सी बात बोली, मैंने, आप सिग्नेचर कैंपेन चला करके चाइल्ड मैरिजेस कैसे रोक सकते हैं? मैंने, एक माँ जो साल में 3 बार अपनी बच्ची का अबॉर्शन कराती हो, वो आपके सिग्नेचर कैंपेन से मान जाएगी कि उसे अपनी बच्ची की मैरिज नहीं करानी है, चाइल्ड मैरिज नहीं करनी है? व्हाट कंस्ट्रक्टिव यू आर गिविंग टू हर। मैंने, आप यहाँ हिंदुस्तान में प्रोग्राम कर रहे हो, आपने यहाँ लैंप लाइटनिंग जलवाया मुझसे। अगर ये प्रोग्राम न्यूयॉर्क में हुआ होता तो क्या आप लैंप लाइटनिंग करते? नहीं करते आप लैंप लाइटनिंग। आप न्यूयॉर्क में लैंप लाइटनिंग नहीं करते हो, वहां रिबन काटते हो, वो आपका कल्चर है। यहाँ आप लैंप लाइटनिंग करते हो क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में लैंप लाइटनिंग का मतलब है प्रोस्पेरिटी आती है। दिस इज प्रोस्पेरिटी। सो जब आप हिंदुस्तान में काम कर रहे हो तो हिंदुस्तान के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग काम करो ना। एक आदमी जो भूखा होता है वो वैष्णो देवी जाता है पैदल नवरात्रों में, भले उसके पास कुछ हो या ना हो, वो अपनी कुल देवी के यहाँ जाकर के कहीं से भी पैसे लाता है, वो मंदिर में थोड़ा बहुत कुछ चढ़ाता है। ये ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं हम लोगों की, आप उनका सहारा क्यों नहीं लेते? हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो वर्ड स्पिरिचुअल है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर इसको डिफरेंट वेज में देखा जा सकता है। कहीं कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कहीं, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं तो सबको इज्जत दे रहा हूं। जब हम इस्लाम में बात करते हैं तो रोजा है ना, 40 दिन का रोजा रखा जाता है, वो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। 5 टाइम की नमाज होती है, वो सस्टेनेबल लिविंग की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। 5 टाइम अगर व्यक्ति नमाज पढ़ता है तो 5 टाइम वो योगा कर रहा है, वो हेल्दी रहेगा। अगर वो सही मैनर में 5 टाइम अगर नमाज पढ़ता है तो वो उसकी हेल्थ को देखिए वो कितना इंप्रूव कर रहा है। तो हर रिलीजन में इस तरीके की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। अगर हम उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को सही मायने में समाज के सामने ला पाए, स्पिरिचुअलिटी के वर्ड को करेक्टली अगर लोगों तक पहुंचा पाए, क्योंकि जैसे ही आप वर्ड स्पिरिचुअल कहते हैं ना तो आधी जनता तो के दिमाग से ऊपर से निकल जाती है वो बात, अरे ये तो हमें किसी धर्म में फंसाने आ गए। नो, स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है रिलीजियन से, यही बात समझाने की जरूरत है। और अगर लोग स्पिरिचुअल हो गए
और अगर लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ गए, अगर लोग सस्टेनेबल लिविंग की तरफ आ गए साहब, ये दुनिया बदल जाएगी। आई थिंक मेरा टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर आप मुझे कुछ बोलेंगे तो आई कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच हितेश जी, ओवर टू यू। देवेंद्र जी, मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका टाइम नहीं हुआ, टाइम तो शुरू हुआ है। The time has just begun. I have sorry to intercept and come in between, लेकिन ये स्टेटमेंट पे मैं अपने को रोक नहीं पाया। मेरी बहुत सारी Time has just begun. रोका मैंने अपने आप को। Very interesting. Great. In fact, when you were growing up and you lost your parents, not lost, but yeah, they abandoned you. I think मैंने आपसे संक्षिप्त में डिस्कस किया था. I had something similar. मैं 11 साल का था and I grew up on my own. I have seen various different situations, not as poor situation as you were in, but yeah, I've been funding my own self. And I know, जो आपने शुरू में बोला कि उससे कुछ सीखने को ही मिला, कुछ स्ट्रगल भी नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस था जिससे आपने वो समझा और आप बहुत ही सिक्योर फील करते हो और आपको लगता है कि अब समाज में कुछ करना है, मतलब बहुत आई कुड रेजोनेट टू दैट, सो वेरी वेरी गुड। एंड आई थिंक connect, and when you talked about the level the goal 0, that is the most crazy and insane thing which people have to start believing in. Thank you very much when you are endorsing this thought. Thank you very much for धन्यवाद देवेंद्र जी, अपनी लाइफ स्टोरी से हम सबको इंस्पायर करने के लिए। और मेरे को एक नया वर्ड कॉइन करना पड़ा, एक वर्ड है रैग्स टू रिचेस स्टोरी। तो रैग्स टू रिफॉर्मर स्टोरी। कई बार क्या होता है, जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें कुछ ऐसा पर्पस दिखा देती है जो शायद बहुत साधन संपन्न होने के बावजूद भी दिखाई ना दे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन काल में हुआ कि एक एक्सट्रीम पॉवर्टी सिचुएशन या फैमिली में कोई संबंधी या कोई प्रियजन की मृत्यु या कोई और नेचुरल दुर्घटना या टेररिज्म का एक्ट, कोई भी ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जो हमें हमारे एक नॉर्मल अस्तित्व से किसी दूसरी ओर रीडायरेक्ट कर देती है, ऐसी घटनाएं लोगों को रिफॉर्मर बनाती हैं। Okay, so now the stage is all yours. I would like general people and the panelists to ask questions from our eminent panelists today. I have one question from Devendra Kumar ji. He talked about developed countries, underdeveloped countries, and developing countries. My question to Devendra ji is, if any country या कोई भी देश अपने देश में सभी के भोजन की व्यवस्था कर पा रहा है और सभी शिक्षित हैं, साक्षर नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, शिक्षित हैं, साक्षर नहीं है, और अपने दैनिक जीवन का निर्वाह एक उचित तरीके से कर पा रहे हैं, ऐसे देश को उनके पास बहुत बड़े बड़े संसाधन नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे देश को हम डेवलपिंग कहेंगे, डेवलप्ड कहेंगे या अंडर डेवलप्ड कहेंगे? सर, आपका जो क्वेश्चन है ना सर, मैं उसको एक थोड़ा सा बेस में लेके जाना चाहूँगा। सर, जब हम ये कहते हैं ना कि साधन नहीं है, तो सर मैं यहीं पर आके रुक जाता हूँ। जब हम ये कहते हैं ना कि जिसने चोंच दी है तो उसने चून भी दिया है, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं सर। उसने हमें रोटी खाने के लिए पैदा किया है तो हम पिज्जा मांग रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है सर कि नेचर ने, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री हो सर, वहां पर भी है, जितना वहां की पॉपुलेशन के लिए चाहिए उतना वहां है, बट इच्छाओं की जो वृत्ति है ना सर, उसके चक्कर में वो अंडर डेवलप्ड हो गए हैं। उनका जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो उससे बाहर आ गए हैं। आज अगर हम ये बात करें कि जो ट्राइबल बेल्ट है हम लोगों की, बस्तर की, तो क्या वो लोग भूखे मर रहे हैं क्या सर? नहीं, वो सब लोग खा पा रहे हैं सर। वो एक्चुअल में सस्टेनेबल लिविंग वही जी रहे हैं सर। ये तो आप और हम लोग हैं जो कंक्रीट के जंगल में आकर के सब कुछ खराब कर रहे हैं। सो कोई नेशन सर अंडर डेवलप्ड नहीं है सर, ये सिर्फ एक सोच का दायरा है कि हम उसको डेवलपिंग बना रहे हैं। और एक अमेरिका जैसा देश जो डेवलप्ड अपने आप को कह रहा है, ये संज्ञा दी गई है साहब। इस संज्ञा को मैं समर्थन नहीं करता, बट चूंकि ये संज्ञा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है,
तो उस पर्सपेक्टिव को लेकर के चलना तो पड़ेगा आपको कि जब आप यूनाइटेड नेशन के साथ काम कर रहे हैं या आप यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव उसका डेवलप हो चुका है, तो वो सस्टेनेबल लिविंग से बहुत परे है सर। और अंडर डेवलप्ड देन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, सर ये स्टेट ऑफ माइंड है सर। अगर मैं एक्चुअल में इसको कहूं, जो व्यक्ति सर आज जो साधु संत हमारे उत्तराखंड के जंगलों में रह रहे हैं ना सर, वो असल में सर वो 100 साल से ज्यादा जी रहे हैं सर। और हम जो डेवलप्ड कंट्री में जो लोग हैं ना, वो इंसुलिन ले लेके सिर्फ 55 साल खींच पाते हैं सर। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से सर। Just talking to Devenji also on this, what exactly the difference is between education and literacy? That we have understood liberation, and Devenji has answered it partially already in a very different and in a very correct way. And Actually, I would like to say something on this, Arvindji. Literacy has become the need of the hour because there are several communications that only a literate person can understand. Because if something is written in somewhere, or there are instructions, guidelines, anything related to that, then person has to understand that. But if you see in the ancient world, most of the people were not literate, but they were educated, because even the script was not invented, and still there was a time where the education system was able to transfer this wisdom from one generation to another, right, through Guru Shishya Parampara and through Shruti Mantra. Shruti means we all know that we just use our the ability to speak and ability to listen as the main channels for learning. Other than that, there was another medium to learn, and that was original observation. Observing the nature, going into the state of dhyan, meditation, and come up with the original thinking. The secondary thinking, there are anyways two ways to learn: original observation and secondary observation. Secondary observation is when we learn from the original observation of other people. The entire gyan in this universe, entire thing in this universe is nothing but gyan, right? So now this gyan can be studied through original observation or through the observation of other people. So if Newton has observed something, I will learn about Newton, and I will learn about his thesis, I will learn about his documentation, and I will also learn that. Even if I have not seen the principle of every object in the state of motion will remain in that state of motion unless you apply an external force. Similarly, E is equal to mc square from Einstein, then Bohr's model, Pythagoras theorem, all these things we can also observe. What Pythagoras has given as a theorem, we can also originally observe, experiment, testify it, and then learn it. But that will be a long process. For every small piece of gyan, if we do that through original observation, it will take a hell lot of time. And that's the point that we were making yesterday, the importance of guide and mentor. If somebody has seen something, somebody is a seer of something, then he can take us faster there. As a principle, every soul can become self-realized even on its own, right? Even if the person is left in isolation in a jungle, right, with no community around, he can still become self-realized by original observation. But if there is a guide, if self-realized people are there to guide us, we will reach there faster. So it's like, why to reinvent the wheel every time if it is available? So literacy helps us in not reinventing the wheel every time. We can learn directly by being literate. But there are several highly literate people who are not educated. And there are several highly educated people who may not be that literate. So literacy also has like 0% to 100% type of span. So I may be 20% literate, but maybe 60% educated. Sir, मैं एक छोटा सा इसमें दूंगा. Yeah, Devenji ji, I would like to hear from you also. Yes. Yeah. Sir, as per me, education is a very broader aspect. और लिटरेसी उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट. मैं उसको डिफाइन करता हूं महाभारत से. Arjuna was educated with literate. Eklavya was not literate but educated. A small thing. सर, जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं तो वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जहां पर हम एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं.
then we can be educated through learning from experiences. बट जब हम बुक्स से लर्न करने की कोशिश करते हैं और बुक्स से लर्निंग को स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, दैट इज लिटरेसी. वेयर आई सेड वन कोट ऑफ माइंड कि जब विरासत में कुछ ना मिले तो कृतज्ञ बन, और जब समाज के द्रोण तुझे कुछ ना दें तो एकलव्य बन. सो वेरेवर द सोसाइटी हैज ड्रोन टीचर्स, so they teach you in form of material. That is literacy. Writing, reading, now video learning, this is literacy. Education is something very very broader aspect. मैं पूरी जिंदगी जो साधु महात्मा जो होते हैं सर, दे आर वेल एजुकेटेड. जो ज्ञान सर, किताबें कैसे लिखी गई हैं? एजुकेटेड पीपल रोड द बुक्स थ्रू देयर वर्ड्स ऑफ विजडम. वो बोलते चले गए और लिटरेट लोग लिखते चले गए. तो किताब उस लिटरेट आदमी ने नहीं लिखी है सर, बोल उस व्यक्ति के हैं जो एजुकेटेड था. सो एजुकेशन कम्स फ्रॉम विद इन, एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. एजुकेशन कम्स फ्रॉम विद योर परमिशन. हम लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं और हमारे पास इसी पैनल में इसी स्क्रीन पे दो ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं 10th पास हूँ और मैं एक आईटी वाला हूँ और आईटी से डिप्लोमा होल्डर हूँ. अगर हम इसी चीज को लेकर के चलें, तो गो विथ ओनली दीज टू एग्जांपल्स, व्हाई आई वांटेड टू से इज एजुकेशन, यू हैव चेंज्ड द वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू चेंज फ्रॉम योर ओन पर्सनल एजुकेशनल लर्निंग. And Hitesh Chandel is also doing the same thing with his own personal experiential learning. And both of them, if we talk, they are not literate that to level. But what I wanted to say is, if we put focus on education, literacy will follow it automatically. Because literacy, as you rightly said, Devendra, is just a part of it. And that's why my NGO's mission is education. We don't consider literacy or school teaching. So we work on education. So it is my very favorite. I probe this thing to Hitesh many a times, and we enter into this discussion. The reason is we have to tell the world that education, what our NGO perceives is that the person, if for an example is a farmer, if I give him a book to study, rather than if I tell him these are the seeds, these are the your soil conditions, water conditions, and these are the things, and if you grow these crops, and to know more, if you read these books, then that person, that farmer, will be more eager to read because it is directly concerned with him. That exactly is the education, what you talk and what exactly Hitesh also talked. But we are focusing on the parameter which is not to be focused. So my concern was yes, in fact, Arvind ji,